हेलो एवरीवन, आई एम मोना कुमारी, योर मैथ्स ट्यूटर। और आज हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। 12th स्टैंडर्ड का मैट्रिसेस मैं ली हूँ, आईसीएसई के लिए बहुत हेल्पफुल है। आईसीएसई एमएल अग्रवाल के बुक से ही मैं करवा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में एकदम आएंगे। मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the value of k if m is equals to 1, 2, 2, 3, okay, and m square minus km minus I2 is equals to 0. Let me tell you what is I2, I3. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जस्ट सी, I2 in the sense of two order, identity of order 2 है ना। ये कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1। जब I3 होता है ना, दिस इज लाइक दिस, ओके, दिस वे। ये क्या होते हैं? आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिसेस ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। व्हाट इट इज? यूनिट मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? तो ये हो गए आपके। Now see this question. Let's solve it. Okay. Find the value of k. They are just asking the value of k. If m is this, you have to. This is the equation given. Okay. So m square. पहले हम लोग को क्या चाहिए? m square चाहिए। m square निकालते हैं। 1 2 2 3 into 1 2 2 3. Now we have to multiply this. How we will multiply matrices? रो इंटू कॉलम, है ना। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये मैं बेसिक क्वेश्चंस में, बेसिक वीडियोस में करवाई हूँ आपको। तो आप जस्ट समझो, मैं फिर से कराती हूँ। रो इंटू कॉलम, सो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, देन 1 इंटू, देन रो इंटू कॉलम, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, this way, 2 into 1 plus 3 into 2, then 2 into 2 plus 3 into 3. So this you have 1 plus 4, here 2 plus 6, here 2 plus 6, here 4 plus 9. So you got 5 8 8 13. Understood? So ये मिल गया हमको। अब क्या करना है? m स्क्वायर माइनस के एम minus I2 is equals to 0. We will put the values here, okay. See, 5 8 8 13 minus k into 1 2 2 3, okay, and I2. What is I2? 1 0 0 1, okay. So here 5 8 8 13 minus here 1 into k, okay, 2k, then 2k and 3k, minus 1 0 0 1. Understood? Now see, this we will solve it, okay. So what it is, अगर हमें ये दोनों को सॉल्व करते, 5 8 8 13 माइनस 1 0 0 1, एंड दिस वी कैन गेट हियर, ओके। जब ये माइनस में है ना, ये इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये आपके क्या आ गए? सो दिस इज 5 minus 4, 5 minus 1 4, 8 minus 0, this is 8, 8 minus 0, this is 8, and 13 minus 1, this is 12. So this is k, 2k, 2k and 3k. You can just see k is equals to 4. This is our answer. So this way you have to solve it first. This is the equation. Whatever you need here, okay, whatever you need here, like m square you need,
M you need I2. I2 is the unit matrices. So only you have to find out M square and then you have to put the values, calculate it, you will get. This way you have to solve. अंडरस्टूड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप कॉपी लेके इसको एक दो बार बना लो, ठीक है, बस हो गए. साइन 2 अल्फा देन माइनस साइन 2 अल्फा and cos 2 alpha is equals to, this is find a square. Okay, so here see, ये आपको a दे दिए हैं, ठीक है. यू हैव टू फाइंड आउट a square, so you have to multiply. Okay, this is a into a, you have to multiply. So cos alpha sin 2 alpha minus sin 2 alpha and here cos 2 alpha. This you have to multiply with same. Now see, क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम. जस्ट रिपीट विथ मी, यू विल लर्न इट. सी, cos 2 alpha into cos 2 alpha क्या हो जाएंगे, cos square 2 alpha प्लस दिस यू विल मल्टीप्लाई विद दिस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस साइन 2 alpha. Again now you will multiply this, cos 2 alpha into sin 2 alpha, then plus sin 2 alpha into cos 2 alpha. Okay, now here we will multiply this row into both the columns, minus sin 2 alpha into cos 2 alpha plus minus minus sin 2 alpha into cos 2 alpha. Now we will multiply this, minus sin square alpha 2 alpha and plus cos square 2 alpha. Now this we have cos square 2 alpha minus sin square 2 alpha, and here we have, see, minus 2 sin 2 alpha into cos 2 alpha, and here we have 2 sin 2 alpha into cos 2 alpha, है ना. and this we have cos square 2 alpha minus sin square 2 alpha. Okay, understood. Now what we can write, now see, the formula is, आपको ये पता है, sin 2x is equals to होता है 2 sin x into cos x, होता है ना. जस्ट एकदम ध्यान से देखना, जब 2x होता है तो यहाँ पे x और x हो जाता है. ओके, हाफ एंगल हो जाता है. तो जब मेरे पास 4 अल्फा होगा तो व्हाट, यहाँ पे क्या होंगे, sin 2 अल्फा इंटू cos 2 अल्फा. समझे, जब यहाँ पे 2x था तो वो x इंटू एक्स हाफ हाफ हो जाते. तो जब 4 अल्फा होगा तब यहाँ पे 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा होंगे, है ना, जो हम लोग के पास है. यहाँ पे देखिए 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, एंड ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये होते हैं cos 2x. तो अभी हमारे पास क्या है, cos 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएंगे, cos 4 अल्फा. अंडरस्टूड, ठीक है, समझ आ गए. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे cos 4 अल्फा, here sin 4 अल्फा, here we can put sin 4 alpha and here we can put cos 4 alpha. Understood. तो ऐसे अगर आप अच्छे से सॉल्व कर देते हो आपको आराम से 4 to 5 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं सारे इंपॉर्टेंट ही आपको करवा रही हूँ. ओके, लेट्स नेक्स्ट बताओ. आई जस्ट होप आपको समझ में आया. वेरी इजी, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम. ओके, फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए है ना, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला. अंडरस्टूड. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो.
if A is equals to 1, 2, 2, 1, show that FA is equals to 0 where Fx is equals to x square minus 2x minus 3. Okay. Now see, very एकदम ध्यान से आप बस 10 मिनट देखो, देखो आपको कितने अच्छे से समझ में आएंगे. Just see what they are saying. They are saying show that fa is equals to 0 and what fx is this. So we will put fa a square minus 2a minus 3. So what we want here, we want a square, so we have to calculate a square. Just see. Okay, so how you will multiply the two matrices? Very simple, row into column. So this way you will just multiply 1 1s are 1 plus है ना 2 2s are 4 plus 1. This way you will just multiply. Very easy. Okay, we got a square. a square मिल गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे. a square minus 2a minus 3. We have to show it. This is 0. Okay, this is equals to 0. This we have to show it. So just see 5 4 4 5 here 2 into what is a 1 2 2 1 and here minus 3. So here we can write 5 4 4 5 minus 2 4 4 2 and minus 3. We have only 3, right? So this is 3 0 0 3 and here it is 3. We can multiply 1 0 0 1 है ना. If nothing is given we can just multiply unit matrices because unit matrix से कुछ भी difference नहीं होगा. See, this is 0. Understood? Proved. So this way you have to solve this last question. I am solving from this exercise, then we will go ahead. I is unit matrix 1 0 0 1. Then they are saying find lambda and mu so that a square is equals to lambda a plus mu I. This we have to show and we have to find the value also. Okay, they just given a and I and we have to find lambda and mu, value of lambda and mu, and this we have to show it. Okay, so what we have to find out, अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा, इतने क्वेश्चंस बना लिए. Just see what we have to find out. We have to find a square. तो निकाल लेते हैं फटाफट a square. A square 2 3 1 2 2 3 1 2. See 2 2s are 2 2s are 4 plus 3 and this is 3 2s are 6 plus 1 2s are 2 plus 2 and here 3 plus 4. So this we got 7 12 4 and 7. Understood? This I got, and now we have to put in that equation. Okay, see a square is equals to, so see we will put here a square, the value of a square, and here what is the value of a 2 3 1 2 plus here mu 1 0 0 1. Okay, so here 2 lambda plus 3 lambda, lambda plus 2 lambda, and here mu 0 0 mu.
सो वी विल गेट ना इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, देन वी विल सॉल्व इट। सी प्लस इज देयर, सो ये म्यू ऐड हो जाएंगे हियर ऑल्सो, okay, and this we got here. This way you have to solve, okay, very easy. Now we will just see, equate. What is lambda value? 4. Equate कर देंगे. Now we got the value, we will just put 2 lambda plus mu is equals to 7. We will put the value here, we will get the value of mu. Understood? This way you have to do. Simple. अब सारे वैल्यूज आ गए ना, अब आप उसको इसमें डाल दो, दिखा दो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू है। कैसे होंगे, सी इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। 2 इंटू 4 प्लस माइनस 1, हियर 4, हियर 3 इंटू 4 एंड हियर 2 इंटू 4 माइनस 1, सो दिस इज 7 4 12 एंड हियर 7। सी यू गॉट इट। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड, वेरी इजी। आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, अब बस समझते रहो अच्छे से, जैसे जैसे मैं बताती हूँ अब बस समझो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए, एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, मैट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस? क्या होता है ट्रांसपोज? सी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अगर किसी को ट्रांसपोज करना है तो क्या करेंगे, ए को ट्रांसपोज करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट इंटरचेंज नंबर रोज इनटू कॉलम। सी एग्जांपल आई एम जस्ट शोइंग यू, इफ वी हैव दिस मैट्रिसेस, है ना, अब इसको ट्रांसपोज करना है इसके, तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में डाल देंगे, है ना। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गए। अंडरस्टूड, दिस इज दी ओनली कॉन्सेप्ट, बस यही है। ट्रांसपोज मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम चेंज कर दीजिए, बस खत्म। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं मैं इसी में बताती हूँ। सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हाट इट इज, इसमें क्या होते हैं, अगर A इज इक्वल्स टू ए डैश हो गया, ए डैश इन द सेंस ए ट्रांसपोज, अगर कोई भी मैट्रिसेस है, अगर आप उसको इंटरचेंज करते हो, ट्रांसपोज उसके करते हो, अगर वो सेम मैट्रिसेस फिर से आ जाता है, देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। अब ये कैसे होंगे, जस्ट सी एग्जाम्पल, 3 - 1 - 1 5, दिस यू विल राइट, इसके ट्रांसपोज करो आप, क्या होंगे, 3 - 1 - 1 5। सी दिस इज सेम, है ना। तो जब भी कोई भी मैट्रिसेस उसके ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर सेम एलिमेंट्स आते हैं, सेम मैट्रिसेस सेम आपको दिखता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। नाउ सी स्क्यू सिमेट्रिक, now skew symmetric when A transpose is equals to -A, कुछ करना नहीं है, बस ये जितने भी ये सारे है ना फॉर्मूला, ये जो है ना बस इसको समझ लो। ना सी A ट्रांसपोज, जब आप ट्रांसपोज करोगे ना तो मैट्रिसेस क्या हो गए, सिर्फ नेगेटिव हो जाएंगे, तो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लाइक सी एग्जाम्पल, 0 - 5 5 0। सी अगर मैं इसके ट्रांसपोज करती हूँ तो ये क्या आएंगे, 0 - 5 5 0, है ना, ये आ गया ना। अगर अब मैं इसके माइनस, इसमें ये आ गए, अब मैं इसके माइनस बाहर निकालती हूँ, कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये आ गया ना। अंडरस्टूड, दिस वे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मैट्रिसेस होते हैं ना, आप उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हमेशा सेम होता है ना। कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सम ऑफ मैट्रिसेस, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला एंड वी हैव टू प्रूव इट। प्रूविंग आपको नहीं आता है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, यू जस्ट हैव टू प्रूव इट कि हाँ ऐसा होता है।
Okay, let's start. Express the following matrix -4, 3, -2, -5, -1, 1 and 2. ओके, सो हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिसेस इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, तो पहले हम लोग सिमेट्रिक निकाल लेंगे इसके. तो कैसे निकलेंगे? पहले इसके ए डैश निकाल लेंगे. ए डैश क्या होते हैं मैं पहले पार्ट में बताई हूँ. ठीक है, ए डैश निकाल लेंगे मतलब ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे. क्या होंगे? सारे रो कॉलम्स बन जाएंगे. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप क्या निकालोगे? आप ए प्लस ए डैश निकालोगे, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो ये दोनों को ऐड करेंगे, है ना? तो क्या होंगे? 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2 प्लस 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2. Okay, so we have to add this. So 3 plus 3 6, -2 plus 3 plus 1 -5. Here see plus minus minus. ठीक है, 3 -2 1. You just know this. -2 plus minus तो -4. Then -5 plus 1 -4 -1 -5 1 plus minus -4 and here 2 plus 2 half a plus a dash. ओके, अब आपको हाफ करने इसके. तो ये हो जाएंगे हाफ 6 1 -5 1 -4 4 -5 -4 4. अगर आप ये बना लेते हो अच्छे से तो इससे आराम से आपको 3 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे. दिस इज आवर. ठीक है, ये हमारे आ गए. ये क्या आएंगे? 6/2 3 1/2 -5/2 then 1/2 -4/2 it's -2 then -2 here -5/2 here 2 here 2. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया है ना. हम लोग को क्या करना है? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है. हम लोग ये मैट्रिसेस था उसके ट्रांसपोज निकाले, ए प्लस ए डैश ट्रांसपोज किए और उसके हम लोग हाफ ए प्लस ए डैश कर लिए. ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे? नाउ वी विल कैलकुलेट स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग को क्या चाहिए? ए माइनस ए डैश चाहिए. तो हमारे पास ए क्या है? 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 minus A transpose 3 3 -1 -2 -2 1 and -4 -5 2. It's very clear, बहुत easy है ना. आप बस अच्छे से समझ लो. See 3 - 3 0 -2 -3 -5 -4 plus -3 3 plus 5 -2 plus 0 -5 -1 -6 -1 plus 3 1 -5 6 2 -2 0. अंडरस्टूड. तो ये आ गए हमारे a माइनस ए डैश. ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग इसके भी हाफ निकाल लेते हैं. ओके, इसके हाफ क्या हो जाएंगे? 1/2 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0. So here you will get 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0. अंडरस्टूड. वेरी इजी. कुछ नहीं कर रहे हैं. पहले a प्लस ए डैश हाफ a प्लस ए डैश निकाल रहे हैं, मतलब हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज. एंड हियर वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज. ओके, अब हमारे फॉर्मूला क्या बोलते हैं? a इज इक्वल्स टू हाफ होते हैं
a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश, है ना। एनी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, एनी मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अंडरस्टूड, यू कैन सी दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसके ट्रांसपोज भी आप करोगे और माइनस ए बाहर निकालोगे, यू विल गेट, है ना। यहाँ पे ये क्या मिला, हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले। देखिए जितने भी रो है, कॉलम इज सेम, रो कॉलम सेम, तो ये हमारे हो गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गए हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, एनी मैट्रिक्स, वो हमेशा क्या होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। तो हम लोग दोनों वैल्यूज निकाल चुके हो। नाउ वी विल ऐड बोथ द वैल्यूज, तो हम लोग को मिल जाएंगे मैट्रिसेस। -3, 3/2, 3, 0। ये हम लोग एक्सप्रेस कर दिए इसे, A इज इक्वल्स टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमें बोले गए थे कि जस्ट एक्सप्रेस द मैट्रिसेस इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लोग उसको एक्सप्रेस कर दिए। नाउ यू हैव टू वेरीफाई, तो वेरीफाई में क्या करो, आप ये दोनों को ऐड करेंगे ना, यू विल गेट दिस मैट्रिसेस, ठीक है। देखो 3 + 0 यू आर गेटिंग 3, see 3 + 0 3, 1/2 -5/2 you will get -2, and here -5/2 plus -5/2 you will get 4। कैसे होंगे, just see -5/2 plus -3/2 -8/2 4, एलसीएम लेके बनाना है, ठीक है। and here you will get 3, here -2, here -5, -1, 1 and here 2। अंडरस्टूड। तो देखो वेरीफाई भी हो गए कि अगर आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक करते हो तो आपको वही मैट्रिक्स सेम मिल जाता है, ए, है ना। वेरीफाइड भी हो गए, वेरीफाइड भी हो गए। और आपको क्या करना था, इस मैट्रिसेस को एक्सप्रेस करना था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, तो वो भी हम लोग कर लिए। देखिए दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, फिर हाफ करके निकाल लो, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन यू हैव टू फाइंड आउट A - A ट्रांसपोज, ये निकाल लो, फिर इसके हाफ कर दो, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यही मैट्रिक्स को वी कैन राइट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं 12th स्टैंडर्ड के आपके सारे जितने भी क्वेश्चन है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल सॉल्व फॉर यू। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस वीडियोस बार बार देखो और प्रैक्टिस करो, नथिंग यू हैव टू डू। आप बस अच्छे से समझ के बनाओ। +1 5 1 -1 2 1 5 1 3। We have to prove that this is symmetric matrix। तो आप क्या करोगे, आप इसके ट्रांसपोज निकालोगे ना। ट्रांसपोज कैसे निकलेंगे, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, है ना। आप देखो दिस बोथ आर सेम, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज आ गया, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अंडरस्टूड। दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे, जस्ट दिस इज मे बी इट विल कम, ओके। सी इफ A is equals to 2 3 4 5, okay, and we have to prove that A minus A transpose is skew symmetric. How you just have to solve that I am showing you, okay। Just learn to understand कि how I used to solve it. You have to solve it in the same way. See solution A, what you need, A minus A transpose. So first you will calculate A transpose। ट्रांसपोज मतलब रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, यू हैव टू चेंज इट, ठीक है। रो को बना दिए कॉलम, रो को बना दिए कॉलम। नाउ A minus A transpose 2 3 4 5 minus 2 4 3 5। So 2 minus 2 0, 3 minus 4 minus 1, and here 4 minus 3 1, 5 minus 5 0,
है ना, ये आ गया। अब बोल रहे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे स्क्यू सिमेट्रिक है? कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो वो अपने मैट्रिक्स का क्या होता है, माइनस होता है। मान लेते हैं इफ आई विल जस्ट लेट दिस मैट्रिक्स इज वाई, है ना। अब अगर मैं इसकी ट्रांसपोज करती हूँ तो ये क्या आएंगे, 0 -1 1 0, है ना। ट्रांसपोज आ गए। अब मैं इससे माइनस बाहर निकालती हूँ तो 0 -1 1 0, देखो आ गया ना, y ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस वाई, आ गया ना। सी दिस इज माइनस वाई। सो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक के डेफिनेशंस, दैट यू हैव टू गेट ट्रांसपोज। जब आप करोगे वो माइनस मिलेगा। जो भी मैट्रिक्स है ना वो कैसे प्रूव होगा, दिस इज, ये कैसे प्रूव होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक है। आप उस मैट्रिक्स को कुछ भी मान लो, लेट हम इसको मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू दिस, ट्रांसपोज निकाले, ये आ गए। अब जब इसमें आप माइनस बाहर करोगे तो देखो ये आपको सेम मैट्रिसेस मिल रहा है। व्हेन यू आर गेटिंग द सेम मैट्रिसेस यू कैन से देयरफॉर A minus A transpose is a skew symmetric matrix. अंडरस्टूड? वेरी इजी कॉन्सेप्ट यही है। जो भी आपको बोल रहे हैं पहले आपको कैलकुलेट करके निकाल लो, फिर उसको आप कुछ मान लो। अगर सिमेट्रिक बोलता है जस्ट ट्रांसपोज करके इक्वल कर दो। अगर सिमेट्रिक नहीं बोलता माइनस बाहर निकाल दो, देखो वो मैट्रिक्स से सेम है कि नहीं। अंडरस्टूड? एलिमेंट्री ऑपरेशन, कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन करके वी जस्ट फाइंड आउट इनवर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। This is, we used to do many operations, like we used to interchange row, interchange column, we used to sum the two row, दो रो को sum कर देते हैं, subtract कर देते हैं, कुछ भी scalar multiply कर देते हैं। all these are elementary operation। okay, तो interchange of two rows, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो, कोई भी रो के पूरे एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, दीज वी कैन डू। एडिशन हो सकता है, कोरोस्पॉन्डिंग कोई भी दो एलिमेंट, दो रो को हम ऐड कर दें, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे समझ नहीं आएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी see this is like A, if I'm taking, ये A आ गया। ओके, तो ये A इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन राइट A इज इक्वल्स टू I2 into A, है ना। here A 2 5 minus 1 3 and here I2 क्या होते हैं 1 0 0 1, I have taught you, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, एक इनवर्स चाहिए, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बना दें, क्योंकि हम लोग को पता है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, A इंटू ए इनवर्स कितने आएंगे, आई आएंगे, मतलब 1 आएंगे। अगर आप सेम मैट्रिसेस को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको क्या देता है, 1 देते हैं, मतलब 1 0 0 1 देते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इस यहाँ पे इसको यूनिट मैट्रिक्स बना दे, इसका मतलब है ए का इन्वर्स क्या होगा, दिस आई विल गेट। ओके, सो वी विल ऑपरेट टू गेट हियर 1 0 0 1। आपका गोल क्या है कि यू वांट दिस हियर, ठीक है, 1 0 0 1। सो क्या करेंगे, वी विल अप्लाई सम रो ऑपरेशंस। ओके, तो हमारे को क्या चाहिए, सी 1 0 0 1 चाहिए, है ना। तो देखो आप सेकेंड रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट रो, हम लोग सेकेंड रो को ऊपर लेके चल जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑपरेट R1 इंटरचेंज विथ R2, इंटरचेंज कर दिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 3 2 5। एकदम ध्यान से देखते जाना, पहले सीख लो तब करना। अब देखो यहाँ पे ये किए ना, तो सेम वी हैव टू अप्लाई हियर ऑल्सो। सो हियर ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम ऑपरेशन।
जो जो ऑपरेशन आप यहाँ करोगे द सेम ऑपरेशन यू हैव टू अप्लाई हियर। ओके, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है ना, तो व्हाट वी विल राइट, ऑपरेट R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो क्या करेंगे, R2 इज इक्वल्स टू मतलब सेकेंड रो इज इक्वल्स टू सेकेंड रो माइनस 2 इंटू फर्स्ट रो। सो हियर तो जो पहले जो फर्स्ट रो में जिसमें भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, पहले तो आप जो नहीं हो रहे वो फटाक से लिख दो ना। हियर 2 माइनस, मैं ये बताती हूँ आपको, 2 इंटू रो 1 में क्या है 1, ऐसे होते हैं। यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू 3, अंडरस्टूड। और सेम यू विल अप्लाई हियर ऑल्सो, here also 1 minus 2 into 0, 0 minus 2 into 1, ये है ना हमारे फर्स्ट रो। समझे, जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे गया 1 3, here we will get 0, here I will get minus 1, same way here 0 1 1 and here minus 2। अंडरस्टूड। आई एम जस्ट होपिंग दैट यू आर गेटिंग वेरी क्लियर। फर्स्ट ये ऑपरेशन किए, देन ये ऑपरेशन किए। रूल इज कि वट एवर ऑपरेशन यू विल अप्लाई हियर यू हैव टू अप्लाई हियर ऑल्सो, बोथ द साइड यू हैव टू अप्लाई, तब तो ये इसका इन्वर्स आएगा और धीरे धीरे यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा, यहाँ पे इन्वर्स आ जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीख जाते हो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कम, और ये बहुत अच्छे से आपसे होगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। अब ये वाले को आप यहाँ लिख दो 1 3, और ज़रूरी नहीं है कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, यू हैव टू डू द सेम ऑपरेशन, यू हैव टू अप्लाई द सेम ऑपरेशन। अंडरस्टूड। क्या बोली मैं कि जो भी ऑपरेशंस मैं अप्लाई कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है आप भी वो अप्लाई करो, आप अपने तरीके से बनाओ, जस्ट आप कैलकुलेशन में गलत मत करना। ओके, एंड यू जस्ट हैव टू ऐसे धीरे धीरे ऑपरेशन करना है और यहाँ पे आइडेंटिटी लाने हैं। नाउ सी, यहाँ पे क्या लाने हैं हमको, 1 है ना, तो क्या करें, नाउ वी हैव टू मेक हियर 1 है ना, तो करेंगे ऑपरेट R2 इज इक्वल्स टू -1 इंटू R2। क्या कि R2 में 1 -1 मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, -1 मल्टीप्लाई हुआ। ओके, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे जाएंगे -1, यहाँ हो जाएगा 2। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ 0 बनाना है ना, वी हैव टू मेक हियर 0, we will operate R1 is equals to R1 minus 3R2. Okay, so here see 1 minus 3 into 0 and here 3 minus 3 into 1, here 0 here 1, same we have to apply here, 0 minus 3 into -1 and here 1 minus 3 into 2, ठीक है, and here -1 2। So here what you will get 1 0 and here 0 1। See, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गए, and here माइनस माइनस प्लस -1, here -5 2 है ना। सी, यही होता है ना, ये A इनवर्स इंटू A, तभी तो यहाँ पे I मिला ना मेरे को ऑफ ऑर्डर 2, तो ये इसके क्या है इनवर्स है, तभी मेरे को यहाँ पे I मिला। तो गोल यही था, अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हो तो यू विल गेट A इनवर्स, इसी को बोलते हैं रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन कर करके वी जस्ट गॉट दिस, अंडरस्टूड। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 -5 -1 2। और ये कैसे आएंगे, आपको प्रैक्टिस से आएंगे। आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बनाओ, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपके एग्जाम में
फाइनल टर्म में आपके जब भी मैट्रिसेस चैप्टर है, दिस विल डेफिनेटली दिस विल कम. ओके, सो आई जस्ट होप आपको समझ आया. ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जो करना होता है. यू कैन इंटरचेंज, यू कैन ऐड, you can subtract two rows, you can multiply -1. You have see the two rows we are subtracting. Understood? This way we operate and we just क्यों operate करते समझो, क्योंकि हम लोग को ये चाहिए. ओके, और गोल और एक रूल क्या था कि whatever operation you will apply here, you will apply here also. Understood? So you will get this. सी वेरी कामली, एकदम प्यार से समझो. आपको क्या लाना है? द गोल इज सी ए इज इक्वल्स टू हियर I3 इंटू ए, है ना. तो यू विल पुट 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल्स टू हियर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड हियर ए. ठीक है, कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी डिजिट अगर आपका ऊपर नीचे कुछ भी हुआ इट विल, ठीक है, गलत हो जाएंगे. रूल इज वट एवर ऑपरेशन वी विल अप्लाई हियर, वी विल अप्लाई हियर ऑल्सो. सो वी विल गेट हियर ए इनवर्स. यहाँ पे हमको क्या बनाना है? वी हैव टू मेक दिस, है ना. क्या बनाना है? दिस इज आवर गोल. हमको बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 1 0. इफ यू आर न्यू ना, आप ऐसे लिख लो ताकि आपको याद रहे मेरे को कहाँ पे क्या चाहिए, है ना. सो सी फर्स्ट आपको क्या चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले -1 चाहिए. -1 कैसे आएगा? ऑपरेट R1 को इंटरचेंज कर दो R2 से, है ना. तो ये क्या आ गए? 1 2 3 0 1 2. और जो नहीं होंगे वो ऐसे रहेंगे. सी और यहाँ पे इंटरचेंज किया तो यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे. ओके, सी अब मेरे को क्या करना है? यहाँ पे 0 बनाना है. देखिए 1 0 1 0 वी हैव टू मेक हियर 0. सो व्हाट वी विल डू ऑपरेट R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1. यहाँ पे हम 3 को इसको 3 बना के माइनस कर देंगे, है ना. आई जस्ट, आप भी बनाना देख देख के आपको भी आ जाएंगे. इट्स वेरी इजी. सी 1 2 3, जिसमें नहीं करना उसको आप फटाफट लिख दो. नाउ हियर 3 माइनस 3 इंटू 1 तो 0. 1 माइनस सी 1 माइनस 2 इंटू 3 1 माइनस 3 इंटू 3. ऐसे होते हैं. यहाँ पे भी 0 1 0 1 0 0 एंड हियर 0 माइनस 3 इंटू 0 0 0 माइनस 3 इंटू 1 एंड हियर 1 माइनस 3 इंटू 0 ए. अंडरस्टूड? सो हियर 1 2 3 0 1 2 here 0 minus 5 minus 8. अंडरस्टूड? गेटिंग इट ना. बहुत मज़ेदार है. अगर आपको एक बार आ गया ना तो इट्स लाइक पजल. गेम खेलते हैं ना, सेम वे, है ना. ये लाना है तो दिस इज पजल ओनली. यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट एंड यू हैव टू गेट हियर. दिस इज योर गोल. ठीक है, ये आ गए. नाउ अब हम इसको यहाँ लिखते हैं. बड़ा तो होता है ये थोड़ा. 1 2 3 0 1 2 0 माइनस 5 माइनस 8. दिस इज, ये याद रखना, दिस इज एलिमेंट्री ऑपरेशन. अगर आपको बोलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालने, सो यू हैव टू डू दिस वे. ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब ये लाइन तो पूरा कंप्लीट हो गया. अब हमें यहाँ पे 0 करना है ना. सो व्हाट वी विल डू, वी विल R3 इज इक्वल्स टू R3
प्लस 5R2, है ना। कभी भी ऊपर से मत करना वरना फिर यहाँ पे आ जाएगा। ये सेकेंड रो से करिएगा, नीचे नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो वो अच्छे से ऑपरेट होता है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक कि आपको नीचे से ऊपर जाना है। तो हम अब ये दोनों में खेलेंगे, ओके। तो -5 है, अगर यहाँ पे +5 हो जाता है तो मेरा यहाँ 0 आ जाएगा ना। तो जस्ट सी 1 2 3 0 1 2 एंड यहाँ 0, यहाँ भी 0 हो जाएंगे और यहाँ पे कितने हो जाएंगे -8 प्लस 5 इंटू 2 10, तो ये कितने आ गए 2। अंडरस्टूड। दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। जब यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ भी कर दो। सी R3 प्लस 5R2, तो यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ -3 और यहाँ भी 1 होंगे क्योंकि 0 है ना। गेटिंग ना। अब हमारे को क्या करना है, सी ये भी आ गया 1 0 भी आ गया ना। यू हैव टू हियर यू वांट टू 1, सो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। R3 इज इक्वल्स टू R3/3, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5/3 -1 and here 1/3। अंडरस्टूड। जो भी ऑपरेशन आप यहाँ करोगे द सेम ऑपरेशन यू हैव टू डू हियर ऑल्सो। अंडरस्टूड। ये हो गए। Now here we will apply R1 is equals to R1 minus 2R2, okay। यहाँ पे क्या होंगे, सी R1 मतलब 1 माइनस 2R2, तो 0 तो 1 होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0, यहाँ पे हो जाएंगे 3 -1, ठीक है ना। यहाँ 0 1 2 0 0 1, this we have to apply here also। 0 minus 2R2 -2, फिर here 1 0, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे। अंडरस्टूड। ऐसे आपको सोचना तो पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नाउ व्हाट यू हैव टू मेक 0 हियर, है ना। अब क्या करेंगे, R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2R3, तो हो जाएंगे 1 0 -1 0। सी R2 माइनस तो 1, R2 माइनस 2R2 मतलब R3, मतलब सी R2 इज माइनस 2R3, तो 2R3 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएंगे, 0 0 1। द सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई हियर, -2 1 0 R2 minus 2 R1, see R2 मतलब 1 minus, see you have to do like this, R2 minus 2 R1, so 1 minus 2 into 5/2, तो ये कट जाएंगे, क्या होंगे 1 minus 5 -4, है ना। देन 0 minus 2 into -3/2, ये कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। सी 1 minus 2 into 1/2, ये कट जाएंगे, -1। सो दिस वे यू हैव टू, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब क्या चाहिए हमको, -1, व्हाट वी वांट 0, है ना, 0 चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R3, सो 1, सी 1 plus 0 1, 0 plus 0 1, here also 0 0 1 0 0 0 1 आ गया ना। और यहाँ भी वही कर देंगे, सी -2
-2 प्लस 5/2, ये 2 ऊपर जाएंगे, -4/5/2, सो दिस इज 1/2. Here also 1 - 3/2, -2 -3 -1/2. Here 1/2, -4 3 -1 5/2, -3/2 1/2. Okay, so this, see, A into A inverse is equals to identity, so this is your inverse, दिस इज योर इनवर्स आंसर. आंसर A इंटू A इनवर्स आपका आइडेंटिटी आ गया. तो आपको ऐसे ही रो ऑपरेशन बहुत सारा करना होगा. आप आपके अपने मन से करो, आप बुक मत देखो, क्योंकि आप बुक देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे. आप अपने से ऑपरेशन अप्लाई कर करके, मे बी आपके ऑपरेशन डिफरेंट हो, बट मैं ये बता दूं कि आपके इनवर्स सेम आंसर आने चाहिए जो बुक में, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है. ओके, तो आपको चेक करना यही, आपको कैसे पता चलेगा राइट और रॉन्ग. सो यू हैव टू चेक द आंसर. आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है. ऑपरेशंस डिफरेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में. अगर आप कुछ और ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, बिल्कुल भी नहीं काटेंगे. आंसर आपके सेम आने चाहिए. फोकस बस इतना करिए कैलकुलेशन गलत ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन का पूरा खेल है. सो आई जस्ट होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है. प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई हैव जस्ट कवर्ड इट. अब मैं डिटरमिनेंट स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में. आई जस्ट होप आप तब तक बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एंड जस्ट मेक योर मैथ्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, थैंक यू सो मच.